Hello guys, TG की full form आपको पता है, it's technical गुरुजी, but today it's time to change that full form. Technical तो रहेगा, but G say let's make it grand. Not just grand, let's make it gargantuan. दोस्तों, आज मैं आपको लेके आ गया हूँ मुंद्रा सी पोर्ट. This is a complete ecosystem for logistics. आपको बता दूं, दिस इज बिगर देन आगरा. आज क्योंकि दिन बहुत ही स्पेशल है, व्हाई नॉट टेक यू अराउंड एंड शो यू कि आखिर चलता कैसा है ये पूरा पोर्ट. वेलकम टू द स्पेशल एपिसोड. चलिए शुरू करते हैं. If you hear about Mundra Port, it's definitely India's largest. But let me tell you, the idea started way back in 1993. उस टाइम पे ये आइडिया था कि let's create such a kind of setup and completely transform the way logistics are, being done. On 7th of October 1998, जी हाँ, exactly 25 years ago, it was a vessel carrying edible oil, the MT Alpha 2 from Singapore. And it was the first vessel that got serviced here at the Mundra port. If one would see at the high tide, one would wonder that how we are going to build the port. And when you look at this port backup area, it was obviously arid, marsh, and it was very, very difficult to even approach. So we had to kind of construct almost 12-13 kilometer of road just to get in to the location. And that was one of the most difficult tasks. We took almost 2.5-3 years to approach the actual location where the port was to build. Before that, in fact, we used to come in a small boat. In the whole Mundra port, we would get in, take a small boat, which could, kind of come in that depth of water, come on Navinal Island, and then do a lot of surveys, get lost also sometimes there during high tide. And, those were the days. But, of course, the situation and the land situation, very different. In fact, this right now is India's largest commercial port. By the volume of cargo handled, by the size of vessel that can service and handle, by the volume of cargo stored in warehouses, by the diversity of any types of goods it can service, and also by the turnaround time and efficiency. And the simple reason for that is this is an all-weather port, which simply means कि यहाँ पे 2400 घंटे साल के 365 दिन काम होता है. There is no downtime, and that's the reason कि ये इतना स्ट्रेटेजिकली लोकेशन पे प्लेस जो पोर्ट है, इतना बड़े स्केल पे ऑपरेट कर पाता है. एंड आई एम श्योर दिस कंट्रीब्यूट्स अ लॉट to the Indian logistical system. We welcomed the first commercial vessel at Mundra Port in 1998. In the 25 years that have passed, Mundra has become a transformed area. And I'm not just talking about the port, but about the whole of Mundra. From a barren, marshy wasteland, Mundra has turned into a massive industrial hub, driving social economic growth and change at an incredible pace and at an incredible scale, not just in the neighborhood, but across the nation. In just 25 years, Mundra Port has contributed around 2 lakh crores rupees, or an incredible $25 billion to the state and national exchequer. From a handful of tons in 1998, Mundra grew to become India's first port to handle 100 million tons in 2014, and incidentally also became India's largest port in terms of cargo handling in the same year. Today, 11% of India's maritime cargo and 33%
of India's container traffic moves through Mundra port. Located on the northern shores of the Gulf of Kutch in Gujarat, मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट के फ्यूचर प्लान्स काफी एम्बिशियस हैं, बट इवन इन इट्स प्रेजेंट स्टेट इट होल्ड्स एवर ग्रोइंग सिग्निफिकेंस इन द realm of maritime trade. Because spread across a staggering 135 kilometer square, Mundra port के colossal cargo bays can handle massive amounts of ships and their cargoes. इनमें से कुछ बेस 2.5 किलोमीटर तक लंबे हैं। This maritime hub has not only repositioned India's shipping industry, इस पोर्ट ने अपने आसपास के इलाके में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप होने में तक हेल्प की है। इस SEZ ने मुंद्रा द स्लीपिंग विलेज को बदल डाला है मुंद्रा द बिजनेस मैग्नेट में। आज मुंद्रा ट्रांसफॉर्म हो गया है एक डेवलपिंग रीजन में जहां इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं और एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं। मुंद्रा पोर्ट्स banyan-like growth is helping the shrubbery that surrounds it. सो अब बात करो 2007 में, जी, वो टाइम पे इधर की जो पॉपुलेशन थी वो ओनली 7,000 थी। मतलब एक थोड़ा सा बस हल्का बड़ा गांव। यस, जी, और आज वो पॉपुलेशन हो गई है 1 लाख। ओके, आप बात करो को 4 साल 5 साल पहले इधर जो फ्लैट की भाव बोलते हैं 2 BHK 3 BHK जी, वो 7,000 9,000 थे। जी। आज 30,000 रुपीज देने के बाद भी हाउसेस नहीं मिल रहे हैं। मैं मिला यहाँ पे अभी एक लोकल एम्प्लॉई नेम्ड अब्दुल, यस 21 साल का है, 3 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो दैट क्लियरली शोज कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी ज्यादा बड़े स्केल पे लाइफ को इम्पैक्ट किया जा रहा है। एब्सोल्युटली। सो आप बात करो तो एम्प्लॉय की बात करें तो वो लोग वो कंपनी को खुद का समझते हैं। दिस इज देयर ओन कंपनी। आप किसी को मिलो पूरे जी, इकोसिस्टम में, जी। उनको ऐसा ही लगेगा हमारी कंपनी है, और वो जो कनेक्ट होता है ना उसके लिए ये ग्रोथ होता है। As we are celebrating Mundra's journey of the past 25 years, we humbly believe that this journey has just begun. Mundra has demonstrated that India can build world-class infrastructure. However, we believe that Mundra will be the showcase of young India's aspiration. Mundra's next 25 years will be to transform into a world-class port city. This all-round expansion will be driven through innovation, digital transformation, and through sustainable development. This journey will create a global benchmark for a port city development. We have set an ambitious target to become carbon neutral by 2025 and also achieve net zero emission by 2040. Mundra is a showcase of world-class infrastructure, and anyone who sees Mundra will agree that it is a very visible tribute to the vision and determination of pioneering entrepreneur like Gautam Adani, who refuses to stop thinking big and thinking long-term. Mundra is a powerhouse in maritime commerce, which is fueling India's growing economic engine and helping foster global trade with its sheer scale, robust infrastructure, and operational efficiency. मुंद्रा पोर्ट इंडिया के ग्लोबल ट्रेड कंट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। मुंद्रा पोर्ट का मरीन कंट्रोल सेंटर एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जो ऑल पॉसिबल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज करती है टू मॉनिटर एवरी माइन्यूट एक्शन दैट हैपेंस विद इन द पोर्ट्स इकोसिस्टम। इसका मतलब है यहाँ पर हाई प्रिसिजन सेंसर्स, पोजिशनिंग एंड गाइडेंस सिस्टम्स यूज होते हैं ताकि एग्जैक्टली पता रहे वेयर अ शिप इज ऑन वाटर्स, and using highly automized and heavily regulated machinery to handle cargo एक बार जब वो जमीन पर आ जाता है, while keeping time, while keeping safety standards in check, और ये भी इंश्योर करते हुए कि कार्गो इज इन टिप टॉप शेप। ये जो 25 साल हमारे हैं और अभी जो नए नेक्स्ट जो हमारे ये बोलते हैं कि एक हमारा खत्म हुआ, अभी जो नेक्स्ट 25 इयर्स है 30 इयर्स 50 इयर्स है जी, तो अभी नेक्स्ट 5 to 7 इयर्स में इतना इधर इंडस्ट्री आने वाला है। लाइक हमारा जो है सोलर मैन्युफैक्चरिंग जी, जो अभी 4 गीगावाट की कैपेसिटी वो नाउ एक्सपांडिंग टू 10 गीगावाट ओके। विद ऑल बैकवर्ड इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉलीसिलिकॉन, इंगोट, सेल, मॉड्यूल, सस्टेनेबिलिटी को पूरा ध्यान रखते हुए। पूरा सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रख। जी, दैट इज ऑल फॉर द सोलर मैन्युफैक्चरिंग। और जैसे सोलर पैनल बनेगा इधर प्लेस कॉल खावड़ा जो इधर से 200 किलोमीटर पे, ओके, वहाँ पे हमारा सबसे बड़ा आरी पार्क आ रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। ओके, वहाँ पे द टोटल कैपेसिटी 30 गीगावाट
उसमें से 50% 15 गीगावाट हमारा खुद का है अदानी का. ओके. दैट इज अ हाइब्रिड पार्ट, सोलर एंड विंड बोथ. तो आप देखोगे तो ये पोर्ट तो हो ही गया, जी. पोर्ट के साथ होल इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो रहा है. जी. इसके बाद कॉपर स्मेल्टर हमारा आ रहा है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आ रहा है, स्टील प्लांट्स आ रहे हैं. फ्यूचर में इधर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स चालू हो जाएगा, जी. सब कमर्शियल फ्लाइट चालू हो जाएंगे. ये जो अभी जो है 25 साल तो इतना बढ़िया निकले हुए हैं, जी. बट जो नेक्स्ट पोटेंशियल है इसका, इफ यू सी वी हैव द 40,000 एकड़ ऑफ लैंड, जी. स्टिल ओनली 40-50% वी यूटिलाइज. ओके. अब 50% जो है दिस आर गोल्ड माइंस. ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा. इफ यू सी वी हैव द डायरेक्ट कनेक्ट फ्रॉम मुंद्रा पोर्ट 130 कंट्रीज, जी. 130 कंट्री के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है. हमारे पास सी कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, द एरोप्लेन कनेक्टिविटी एंड रेलवे कनेक्टिविटी, ऑल द 4 कनेक्टिविटीज आर देयर. सो आप फ्यूचर का देखें तो ऐसा पोटेंशियल कहीं पे नहीं है. मुंद्रा पोर्ट को ट्रूली सेट अपार्ट करता है उसका स्ट्रेटेजिक जियोफिजिकल लोकेशन. ये एक मेजर सी रूट के पास बसा हुआ है और इस वजह से एक नोडल पॉइंट की तरह इंडिया को मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज, यूरोप और अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट से कनेक्ट करता है विद रिमार्केबल एफिशिएंसी. ये कनेक्टिविटी शिपिंग कंपनीज को टाइम एंड कॉस्ट कटिंग्स के बेनिफिट ऑफर करती है. एंड इट्स नॉट जस्ट इट्स प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनेशनल वाटर्स दैट मेक्स मुंद्रा पोर्ट इंडिस्पेंसिबल. मुंद्रा इंडिया की अपनी बाउंड्रीज के अंदर भी सीमलेस कनेक्टिविटी इंजॉय करता है. Friends, let me tell you something very interesting. See, यहाँ पे अभी जो पोर्ट है, इसका मेन काम क्या है? It is a setup to move the goods in and out of the country. But the biggest question is कि यहाँ पे जो बाहर से सामान आ रहा है, वो पीछे हमने स्टोर कर लिया है. देश भर के सामान को जो हमको बाहर एक्सपोर्ट करना है, वो भी यहाँ पे है. But how do we ensure that this has a good connectivity in terms of rail network and road network, ensuring कि ये जो पोर्ट है ये पूरे देश भर से connected है. And इसी के लिए I'm not sure how exactly you can see in this frame, but now you can see for sure कि पीछे there's a train moving right behind me. There's a train moving, you know. So Mundra Port has a rail network of 210 kilometers, ensuring that the connectivity is amazing in terms of, you know, moving the goods in and out of the country. By the way, यहाँ से direct Delhi के लिए by train we have access. रोड नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो all the roads mostly are of 4 to 6 lanes, ensuring कि जो भी cargo movement है, for example there's a trailer right there, वो जब यहाँ से बाहर निकले with least amount of traffic, with least amount of congestion, it reaches the destination as fast as possible. Because I think these are some essential things for a port to operate. Otherwise, just think about situation कि बाहर से सामान तो बहुत सारा आ गया है और सामान जमा हो गया है जो कि शायद इतना फास्ट मूव नहीं कर पा रहे हैं. या फिर let's say you have lots of goods to export, but they're not able to reach the port on time. I think this connectivity ensures the smooth operation of this port. For a fact, यहाँ पे बगल में ही, मुंद्रा में ही एक एयर स्ट्रिप भी है जो कि अभी छोटे एयरक्राफ्ट्स को सर्विस करती है. एंड इन फ्यूचर द प्लान इज टू एक्सपैंड दैट, ensuring rail, road and air connectivity in the best possible way for this location. And if we had to develop, port, the speed that we wanted to develop in without railway, it was not possible because with road connectivity, whatever that we had, very limited cargo would have been either brought or evacuated. So if we had to do the right volume, as what our aspiration was, without railway, there is no port. So we decided that we will build it. Now that's the kind of, the challenge that Gautam Bhai takes. I don't think that by then anybody would have thought like port connectivity to be done by a private sector in railway. It was almost 65-70 kilometer connectivity that we had to do right up to Adipur from Mundra. And there were hundreds of people, land was involved, government land, private land, and people whose records we would not be able to trace. So we had to go all out to find out who that land belonged to whom. Many people were hundreds, thousands of kilometers away. We could not even find. So find the government records of the land. We did all that, and then from there we started kind of designing. India, with its long and open coastline, needs more ports. Our experience in designing and building Mundra's industrial ecosystem has helped us to look ahead and devise effective strategies to transform existing and future ports into economic powerhouses for India. We are continuously exploring strategic location and assessing the feasibility
to establish another port like Mundra. इस ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी को आप फर्दर ऑब्जर्व कर सकते हैं रोरो टर्मिनल में। 2009 में बना ये ऑटोमोबाइल रोल ऑन एंड रोल ऑफ टर्मिनल आज एक बेंचमार्क बन गया है इन हाउ ऑटोमोबाइल्स आर शिप्ड फ्रॉम एंड टू इंडिया। अब चाहे दिल्ली एनसीआर में बनी मास प्रोड्यूस्ड कार्स हो या फिर लग्जूरियस व्हीकल्स असेंबल्ड इन द फैक्ट्रीज ऑफ पुणे एंड चेन्नई, this terminal has been quickly rising as the proven gateway for automobile companies receiving their raw materials and sending their finished products out. जिस ईज से ये लाखों कार्स को हैंडल करता है, उतने ही आराम एंड प्रिसीजन से ये रोरो टर्मिनल बसेस एंड ट्रक्स को भी संभाल सकता है। मुंद्रा पोर्ट का कटिंग एज फ्लोटिंग पॉन्टून एंड लिंक स्पैन एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है जो एनेबल करता है अनइंटरप्टेड राउंड द क्लॉक रोरो ऑपरेशंस, thereby ensuring that vehicles flow effortlessly in and out of the port. कस्टमर सर्विस के लिए इतनी ज्यादा अटेंशन दी गई है डिटेल्स में that the port also features top-notch washing facility to cater to the parking and cleaning needs of these automotive giants. I am inside a ship, that carries vehicles, and not just one, not just two, not just 100, but in fact thousands of vehicles. अभी इस जहाज में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी गाड़ियां पार्क्ड हैं। मैं आपको नीचे चल के दिखाने वाला हूं और हमारे साथ में अभी है मिलिंद भाई जो कि रोरो यूनिट के सुपरवाइजर हैं। इनसे हम अभी कहाँ पे खड़े हैं, आप बता पाएंगे? अभी हम लोग 8 नंबर डेक के 3 नंबर होल्ड में खड़े हुए हैं और अभी यहाँ ये जो वेसल है ये टोटली 12 डेक का है जिसमें हम 8 नंबर डेक 3 नंबर होल्ड में खड़े हुए हैं। गाइस टोटल 12 डेक विच सिंपली मीन्स टोटल 12 मंजिल है यहाँ पे। हम अभी लेवल 8 पे हैं, हम एक लेवल नीचे जाने वाले हैं और अगर आप देखेंगे मेरे चारों तरफ तो यहाँ पे ये सारी गाड़ियाँ जो इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती हैं। यस। अभी सर ये गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं यहाँ से? ये अभी साउथ अफ्रीका जा रही है। अच्छा, और सारी गाड़ी देख रहा हूँ कि सारी गाड़ियाँ मारुति के अलग अलग मॉडल्स हैं। ये मारुति और टोयोटा की गाड़ियाँ हैं। आप अगर देखें यहाँ पे चारों तरफ तो कितना प्रिसीजन के साथ में इन गाड़ियों को पार्क किया गया है, मतलब लगता है कि जरा सी भी जगह को वेस्ट नहीं किया गया है। मिलिंद भाई, कोई फिक्स इसका नाप रहता है कि अब गाड़ी को कितना गैप करके खड़ी करेंगे? यस, इसमें बम्पर टू बम्पर 30 सेंटीमीटर का गैप रहता है और मिरर टू मिरर 10 सेंटीमीटर का गैप से हम लोग पार्क करते हैं। 10 सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर मिरर टू मिरर और बम्पर टू बम्पर 30 सेंटीमीटर करते हैं। हम एक बार अगर शायद देख पाएंगे साइड में तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं जाके कोशिश करूं कि ओके, लगता है 10 से भी कम लगता है शायद। तो इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग है ड्राइवर्स को या अंदर कोई आदमी होंगे हेल्प करने के लिए ताकि एकदम ऐसा बिल्कुल सिस्टम में इनको पार्क कर सकते हैं? नहीं, इसमें सर प्रॉपर हमारे पास ड्राइवर में जो है सिग्नल मैन रहते हैं जो कि जो गाड़ी में बैठता है अंदर पार्किंग करने वाले जिसे हम पार्कर कहते हैं, वो पार्कर को प्रॉपर सिग्नल मैन जो है उसको गाइड करता है और गाड़ी को इस तरह से पार्क करता है। तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके हम इनको जो है इस वेसल ऑपरेशन में लगाते हैं। मिलिंद भाई, एक बार में इस पूरे वेसल में कितनी गाड़ियां आ सकती हैं आपसे अगर पूछूं मैं तो? ये आज हम लोगों का जो ये वेसल है जिसमें 3500 गाड़ी हम लोगों को लोड करनी है। Friends, as you can see behind me, I mean operations in Mundra Port, they are really on a massive scale. And to tell us more about the kind of tech जो इन operations में काम में आता है या फिर talking about safety, let's say, I have with me the CEO of Mundra Port, Sujal Shah sir, and sir is here to tell us कि आखिर वो कौन सी technologies हैं या किस तरीके से kind of the entire setup is running in making sure कि जो भी सारे कंटेनर आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो शिप से आते हैं उनमें लोडिंग या लोडिंग की जाती है वो एकदम प्रिसाइजली सही तरीके से ज्यादा टाइम को बचाते हुए की जाए। सर, क्या सीक्रेट है? बिकॉज आई मीन यू आर द सीईओ, इफ आई आस्क यू, ऐसे किसी पोर्ट को ऑपरेट करने का उसमें टेक का कितना बड़ा रोल है? बहुत ही बड़ा रोल है। सो सेफ्टी और टेक्नोलॉजी दोनों एक दूसरे के हाथ में लेके चलते हैं। सो सबसे बड़ी चीज होती है कि जितना हम टेक्नोलॉजी से यूज कर सकते हैं उतने हम इंसान को दूर कर लेते हैं। सो वी वुड प्रेफर टू हैव अ मैनलेस ऑपरेशन एज मच एज पॉसिबल। तो जैसे अगर ये आप पीछे देख रहे हैं इतनी बड़ी मशीन है, इसके मशीन में सिर्फ एक
या कभी कभी 2 एक ट्रेनी ऑपरेटर को मिलके ऑपरेटर चलाते हैं। ये मशीन पूरी फाइबर ऑप्टिक के साथ कनेक्टेड है हमारे बैकबोन सिस्टम में। मशीन के अंदर में मशीन को पता होता है कि किस जगह से वेसल से कौन सा कंटेनर उठाना है और कौन सा कंटेनर किस जगह पे वापस रखना है। हर कंटेनर का एक यूनिक आईडी होता है। वो आईडी मशीन पढ़ती है और अकॉर्डिंगली उसे ट्रक में रखती है। जो ट्रक जाता है यार्ड में और यार्ड में उसको किस जगह रखना है वो पहले से प्री डिसाइडेड होता है। उसी जगह पे X, Y और Z तीनों कोऑर्डिनेट में उसी जगह पे कंटेनर को रखा जाता है और फिर उसका चेक बैक होता है कि किस जगह एक्चुअली रखा गया, ताकि आने वाले समय में जब उस कंटेनर की जरूरत पड़े तो सिस्टम बताती है कि किस कंटेनर किस कारण से किस जगह पे रखा हुआ है। तो जब उस कंटेनर की बारी या तो री एक्सपोर्ट में आती है या उसकी डिलीवरी ऑन अ लैंड में आती है, तो उस कंटेनर को उसी जगह से आदेश किया जाता है। दूसरा मशीन है जो उसी प्रकार से इंटेलिजेंट मशीन होता है। उस मशीन में ऑपरेटर के सामने एक छोटा सा टैबलेट होता है, उस पे उसे दिखता है कि कहाँ से कौन सा कंटेनर उठाना है और उसे एक ट्रक के ऊपर में जिसका नंबर तक प्री डिसाइडेड होता है उसके साथ में नंबर में रखा जाता है और वो कंटेनर अपने गंतव्य स्थान पे चले जाता है। It's like a video game. It's like exactly like a video game, but it's a 100% tech-enabled video game wherein the maximum of a technology is used in identifying, locating, relocating and then assigning the container. अब जैसे अगर आप जानते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें होती है जिसमें हमें परमिशंस, पेपर वर्क होता है, कस्टम्स के रूल्स होते हैं, पेमेंट के रूल होते हैं। ये सारे चीज़ सीमलेसली उस सारा चीज़ बैकग्राउंड में चलते ही रहता है और ये एक टचलेस प्रोसेस होता है जिसके अंदर में एक बार ऑर्डर के बाद में मशीन के ऊपर, मशीन के बाद ट्रक की जो मूवमेंट है कंप्लीटली ऑटोमेटेड होता है। So, I mean, sir, for example, it also depends on the kind of stuff जो कंटेनर के अंदर है। पेरिशेबल आइटम है या उसको आपको पावर सप्लाई करना है बिकॉज इट्स रेफ्रिजरेटेड कंटेनर, या फिर किसी की प्रायोरिटी है डिलीवरी में। आई मीन एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। यस, सो देयर आर कपल ऑफ टाइप्स ऑफ कार्गोस। जैसे आपने बताया एक पेरिशेबल होता है जिसमें दवाइयाँ हो, सी फूड हो, कोई टेम्परेचर सेंसिटिव फूड आइटम्स हो, तो उसको रिफर कंटेनर बोलते हैं जो रेफ्रिजरेटेड रहता है। तो जब वो ग्राउंड पे यहाँ पे स्टोरेज में रहता है तभी भी उसको पावर दिया जाता है। जब वो शिप में सेलिंग में होता है तब भी उसे पावर मिलता है ताकि वो हमेशा कार्गो को निश्चित टेम्परेचर की रेंज में रखता है। ऐसे ही प्रोजेक्ट के कार्गो होते हैं जो ओवर डायमेंशन कार्गो होते हैं। कुछ कार्गो होते हैं जिनके 20 फीट कंटेनर में होते हैं, कोई 40 फीट कंटेनर में होते हैं। तो अंदर में क्या है और उसकी क्या सेंसिटिविटी है वो भेजने वाला एंड पाने वाला वो डिसाइड करता है। और वो जो स्पेसिफिकेशन बोलते हैं वी स्ट्रिक्टली get guided by that. So I think the technology is definitely playing an important role in ensuring the safety here. Least man intervention and following the procedures just to make sure that nothing goes wrong. Absolutely. Even these machines are built with some added safeties where we don't see, but the machine will see you. Okay. If you go closer to the machine, the gentleman sitting on the operator cabin may not be able to see you, but machine will see you that there is a human somewhere and it will stop before. That's I mean, definitely, I mean, lots of tech going behind the scenes, making sure their operations are seamless. Mundra Port की presence के benefits, they have spilled outside of its official boundaries in the form of the Mundra Port SEZ zone. 45,000 हेक्टेयर्स में फैला ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया का सबसे बड़ा है। ये टैक्स एग्जेम्पशन, कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्पशन, 100% FDI अलाउंस एंड काफी सारे रेगुलेटरी रूल्स एंड कंप्लायंसेस को आसानी से करने के लिए स्पेशल अलाउंसेस देता है। बिकॉज ऑफ दीज, मुंद्रा ने काफी लार्ज इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट किया है, जैसे कि पावर प्लांट्स, स्टील मिल्स, सीमेंट फैक्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड सरप्राइजिंगली इवन IT एंड ITES कंपनीज। इस जोन की वजह से न केवल पब्लिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, इसकी वजह से आई बूस्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ क्लियरली विजिबल है। Mundra SEZ's development has brought a significant transformation in the surrounding communities, and the Adani Foundation has helped bring modern education to the current generation of kids living in Mundra.
अभी हम यहाँ पे हैं. We are all lost in the awe of technology going all around this Mundra port. Behind you can see the MSC Greenwich. और एक पूरे पैटर्न के साथ में the movement of containers is going on. अभी नीचे ट्रक्स लाइन लगा के खड़े हैं. The loading is being done. But just think about that how impactful this entire setup is. What I'm told is Mundra port directly or indirectly touches upon lives of 25,000 people. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, look at all these trucks. कोई गुजरात से है, कोई राजस्थान से है, कोई दिल्ली से है, कोई हरियाणा से है. सामान कहाँ जाएगा? Look at all these people driving these trucks, all these people operating the cranes. I mean, एक तरफ हम बात करते हैं कि कितना बड़ा जहाज है, सामने खड़े होकर मालूम चलता है कि कितना बड़ा साइज है. Then you look at the people who are completely in control of this entire port. वो लोग जो इसको चलाते हैं, वो लोग जो यहाँ पे काम करते हैं 24 घंटे, because it never stops. It clearly shows the way India is progressing. It clearly shows the way India is moving ahead with full speed, because this port is definitely the biggest in India. At the same time, it goes head on head with the world's best available. The turnaround time, the operating efficiency, everything is almost matching the levels of the global best standards. It clearly shows कि जो एक टाइम पे शायद जगह कुछ भी नहीं थी, कितना जल्दी से सब कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म हो गई हैं. All thanks to the power of people. मुंद्रा गांव और उसके आसपास के इलाके में द अदानी फाउंडेशन रन्स वेरियस इनिशिएटिव्स ब्रिंगिंग मॉडर्न, नेसेसरी एंड इवन बेसिक फैसिलिटीज टू एन एरिया जिसने अभी चल रही करंट जनरेशन से एक जनरेशन पहले तक में भी ये फैसिलिटीज नहीं देखी थी. Facilities like modern hospitals, which ensure that people of Mundra don't need to travel miles towards sunrise for advanced healthcare. Facilities like schools, जहां बच्चों को एक क्वालिटी फैसिलिटी में क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है. ये नॉलेज ट्रांसफर की आदत सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ ही नहीं है. The foundation has held special training classes with farmers in the area to help them get off chemical-based farming, get better yields, and get better awareness about sustainable farming methods. Communities like fishermen, इनको भी फाउंडेशन ने हेल्प किया है by providing them with पक्का houses. जैसे कि अदानी फाउंडेशन के साथ पहली बार हमारी वर्कशॉप हुई, छोटी सी बैठक हुई, तो उसमें डिस्कशन हुआ और उन लोगों ने यहाँ पे आए, उनके बड़े से बड़े ऑफिसर मेरे यहाँ पे आए थे. उन लोगों ने देखा कि भाई ये कोई अलग तो हो रहा है, औरों से अलग है, तो अभी हमको और इसको हम कैसे बेटर कर सकें. तो मैंने पहले प्रैक्टिकल दिखाया कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, अभी इसमें हम और क्या प्लस कर सकते हैं और इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं. उसके लिए हमने एक स्पेशल यहाँ पे सेमिनार रखा. उनके जो अच्छे साइंटिस्ट थे, उनके पास अभी भी जो काम कर रहे हैं, जो तज्ञ है, जो प्राकृतिक खेती में ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए, तो वो यहाँ आए. हमने एक 4-5 घंटे का प्लानिंग किया और प्लानिंग के हिसाब से एक एक मुद्दा लिया कि भाई हम पहले पानी कितना देते थे, उसको पानी हम कितना कम कर सकते हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या है पानी की. हमारे पास अभी भी प्रकृति की देन है कि 550 TDS का पानी है 200 फीट पे, लेकिन और ऐसी जगह हैं जहाँ 4,500, 5,000, 6,000 TDS का पानी है जो गाय भैंस नहीं पीती. लेकिन इसी को हम अगर फिजूल में खर्च करेंगे तो आने वाले समय में ये भी नहीं रहेगा. पहले यहाँ पर हम जब आए तो ये गांव तो बहुत ही चलने के लिए कोई रास्ता या सड़क नहीं थी, रास्ता था ही नहीं, सड़क ही नहीं थी. और पढ़ने के लिए पहले पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं थी. आसपास हमको जब कोई भी बीमारी होती या कुछ भी अर्जेंटली हमको जाना पड़ता तो यहाँ पे कोई भी अस्पताल नहीं थी जिससे हम सारवार ले सकें. तो इससे पहले तो कुछ था नहीं, पर धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी शुरू होती गई है तैसे ये गांव में सड़क बन रही हैं. और आगे बढ़ने के लिए हमको ये पास में पाठशाला बना आ रही है, तो हम जब पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें. धीरे धीरे पहले तो हम यहाँ पर आए तो पूरा जंगल ही था, यहाँ जहाँ देखे तब पेड़ और पौधे थे, रहने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, मानो कोई जंगल में हम आ गए हैं. तो धीरे धीरे यहाँ पर पूरा डेवलपमेंट विकास होने लगा. और जैसे हम आगे आगे आए तो अब यहाँ मैं छोटी हुई तब से बड़ी हुई हूँ, तब से मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे बहुत ही हमारे घर सुविधा आ रही हैं, क्योंकि भारत सरकार अभी बहुत ही प्रयत्न कर रही है कि सबके घर घर पहुँचे सगवड़. तो अभी हमारे पास एक पाठशाला, अस्पताल, सब कुछ है जिससे हम पढ़ सके, आगे बढ़ सके. आज हमने बहुत कुछ नया देखा, काफी कुछ नया जानने को मिला अबाउट दिस पोर्ट.
and how exactly this is helping the country grow at a faster pace, because ये जो सारे goods का आना और जाना है हमारे देश में, this is very 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 important. And I mean, I'm sure you all enjoyed this special report about Mundra Port, because this is the time wherein this port completes the 25 years. आगे आपसे मिलने वाला हूँ किसी और स्पेशल रिपोर्ट में, किसी और स्पेशल टॉपिक के ऊपर. फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं. Have a good day.